Hello students, let us start today's lecture. So up till the last lecture, we have discussed a non-deterministic finite automata. Okay, so we have discussed its introduction. We have discussed the concept of NFA. What do we mean by NFA? So on the basis of DFA, we have defined the definition of NFA. The basic difference between the NFA and DFA is in DFA there is exactly one transition from each state on each input symbol, while in case of NFA from each state there may be 0, 1 or more transitions. Okay, so we are the transition number of transitions from a state on a particular input symbol are not restricted. Okay, not restricted to 1. So this is the concept of NFA. Then we have discussed why NFA. So we have discussed because NFA accepts exactly the same language which DFA accepts. So why we require NFA? So the reason behind this is that NFAs are more succinct. They are more close to the understanding of our understanding of the language, and moreover, they are easier to design in general in comparison to DFAs. Okay. Then we have discussed the other concepts related to the NFA, that is what do we mean by non-determinism. We have seen in NFAs how non-determinism occurs. Then due to the non-determinism, our notion of acceptance will change. So we have discussed what will be the notion of acceptance in case of NFA. So in DFA, if our string terminates in a final state, then it is accepted, otherwise it is rejected. While in case of NFA, it is not necessary that your string will be fully processed. So you may have the situation of input crash as well. So whether it is an input crash or your string is following multiple paths in the NFA. So some of which are following to the failure and some of which are leading to the acceptance. So even if there exists a single path over which you lead to the success, you ultimately reach to a final state at the end of the string, then your string will get accepted. So all the failures will be ignored, and success at least one on at least one path, if there is success, we will accept the string. Then we have discussed it, its formal definition. It is almost similar to the DFA. The only difference is in the transition function of NFA. Transition function in case of DFA was from Q cross sigma to Q. It was in case of DFA, and in case of NFA it was from Q cross sigma to 2 to the power Q. So in case of NFA, so only this is the difference as far as formal definition is concerned. And because of this difference, the execution of a string over NFA will be different. We have already discussed that in DFA, your strings will follow a single unique path, while in case of NFA, your same string may follow multiple paths. Okay, so this is the difference between the execution of strings over NFA and DFA. And when a string is executed over the NFA, it basically follows all the paths and look at if there is a path over which we are finding the success. If on any path we are finding the success, string will be accepted. If on all the paths, either they are terminating due to the input crash or they are leading to the failure, then we will reject the input string. Then we have discussed some more differences between the NFAs and DFAs. So we have seen what will be the difference in the transition table. So if we look at the transition table of NFA and DFA, so each entry in the transition table for DFA will be a single state, while in case of NFA, it will be a set of states. Okay, so always you will write it in curly braces in case of NFA, and the way in which the string are executed. Then we have gone to the design of NFAs. We have discussed certain examples of the design of NFAs, and we have proved that NFAs are more succinct and easier to design. And then we discussed that ultimately we want our machines to be deterministic. So there is a need to convert NFA to DFA, and because we have mechanical algorithmic method to convert NFA to the DFA, so we can follow that method to convert our non-deterministic machines to the deterministic ones. Okay,
So each NFA can be converted to a DFA which accept the same language. And we have seen the method by which we can convert NFA to the DFA. Our today's agenda is to discuss minimization of DFA. So we'll follow it, minimization of DFA. Now I'm putting one example here. Suppose my DFA is, it is a start state, then I say it is a final state, there is one more final state, and from a start state on B I move to itself, on A I move to first final state. Okay, now from first final state on B I move to the start state, on A I move to the second final state, and from second final state on A I move back to the first final state, and on B I move to the start state. So if you analyze this particular FA, can you tell me what language this FA is accepting? Anyone from class? Just analyze this FA and tell me what language this FA is accepting. Meanwhile, I am also drawing the second FA. Okay, you analyze the first one and tell me the language. Anyone from class? Nobody is able to find the language of this FA. Okay, tell me what will be the language defined by this second FA. Sir, ending with A, first वाले की. First वाले का all strings that ends with A. Ending with A. Ending with A. So over A and B, all strings ending with A will be accepted by this first DFA. What is the language of the second DFA? Same one. So the same language this second DFA is also representing. Now you can look at that this DFA is made with 3 states and this DFA is made with the 2 states. Obviously baat hai, which design is better? The second design is better. So it is a better design. Why it is a better design? Because it is using less number of resources and we can say this is the minimized DFA. So हमारा डिजाइन जितना कॉम्पैक्ट होगा, जितना जो है कम रिसोर्सेज यूज करके बनेगा, द डिजाइन इज बेटर. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, जो मशीन्स डिस्कस की, सबसे पहले हमने DFA डिस्कस किया. DFA हमने डिजाइन करना जो है लर्न किया, प्रैक्टिस किया. उसके बाद हमने देखा कि DFA को हम और आसानी से NFA के थ्रू बना सकते हैं, फिर NFA को हम DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो चाहे DFA हम डायरेक्टली डिजाइन करें या हम DFA को NFA बना करके फिर कन्वर्ट करें, इन दोनों ही केसेस में इट इज पॉसिबल कि इफ आवर DFA इज नॉट ऑलरेडी मिनिमाइज्ड देन वी कैन मिनिमाइज इट. ओके, अब सपोज यानी कि अगर मेरे को ये DFA दिया जाए तो आई कैन मिनिमाइज दिस DFA एंड फाइंड इट. ओके, अगर मेरे को ये DFA दिया जाए सेकंड वाला, सो कैन आई मिनिमाइज इट? कैन इट बी मिनिमाइज्ड? यानी कि सेम लैंग्वेज के लिए क्या कोई आप ऐसा DFA बना सकते हैं जिसमें 2 से कम स्टेट हो? इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट? क्लास, योर रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड. नो. क्यों नहीं बना सकते? क्या कारण है? आपकी समझ से क्या कारण होना चाहिए कि यहां तो मैं मिनिमाइज नहीं कर सकता और यहां मैं मिनिमाइज कर सकता हूं? सर अगर एक ही स्टेट यूज करेंगे तो फिर सेल्फ लूप ही लगाना पड़ेगा, तो उससे पता नहीं चलेगा कि इसमें A आ रहा है या नहीं आ रहा है. Okay, that is something logical you have told,
बट अगर आप ध्यान से देखें कि इस पर्टिकुलर एफए में, पहले वाले एफए में मिनिमाइजेशन क्यों पॉसिबल है, आप इन स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना शुरू करिए। पहली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, इट इज अ स्टार्ट स्टेट, ऑल वर्ड्स एंडिंग विद बी विल बी टर्मिनेटेड हियर। देखिए चाहे आपको बी मिल रहा है तो बी और केवल बीज हैं तो आपका यहीं पर टर्मिनेट होगा स्ट्रिंग, ठीक है। सपोज ए आया तो आप यहाँ पहुंचे, उसके बाद फिर बी आ गया तो आप वापस इस स्टेट पे पहुंचे, ठीक है। इसी तरह से अगर इस स्टेट से आपको ए मिला तो आप इस स्टेट पे पहुंचे, और इस स्टेट से भी लेकिन अगर आपको बी मिला तो आप वापस, यानी कि आप देखिए बी के सारे ट्रांजिशन इसी स्टेट पर आ रहे हैं, पहली स्टेट पे। सो दिस स्टेट रिप्रेजेंट्स ऑल दी वर्ड्स, ऑल दी स्ट्रिंग्स विच आर एंडिंग विद बी, इज इट। उसके बाद आप इस दूसरी स्टेट को देखिए, जब तक बी मिलता रहा आप यहीं पे रहे, जैसे ही आपको ए मिला वैसे ही आप इस स्टेट पे आ गए, एंड इट इज अ फाइनल स्टेट। अगर आपका स्ट्रिंग यहाँ फिनिश कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्ट्रिंग ए से फिनिश करेगा, और आपने बताया भी आपकी लैंग्वेज क्या है, ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद ए, यानी कि इट विल बी सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनल स्टेट, ओके। लेकिन अब अगर इस पे बी मिल रहा है तो इस पे आप वापस चले जा रहे हैं इसी स्टेट पे। लेकिन अगर ए मिल रहा है तो कायदे से जैसे इस सेकंड वाले इसमें बना था, आपको यहीं पे स्टे करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपना डिजाइन ऐसे नहीं बनाया। मैंने ए पर यहाँ स्टे करने के बजाय, सेल्फ लूप लगाने के बजाय, मैंने ए पर इसको भेज दिया एक दूसरी स्टेट पर, एक दूसरी स्टेट पर, इज इट। अब इस दूसरी स्टेट पर मैंने भेज दिया तो अब आप देखिए इस दूसरी स्टेट के ट्रांजिशंस देखिए, अगर मुझे ए मिलेगा तो मैं वापस इस पहली स्टेट पे आ रहा हूं, यानी केवल ये क्या कर रहा है, ऑड नंबर ऑफ एज यहां एक्सेप्ट हो रहे हैं। ऑड नंबर ऑफ एज अगर आपके जो है से एंड हो रहा है, यानी 1 3 5 7 कंटिन्यूस एज आकर के एंड होगा, तो कहां एंड होगा, इस वाली स्टेट में। अगर 2 4 6 8 ए आकर के एंड होगा तो इस कौन सी स्टेट में होगा, इस वाली स्टेट में। बट अल्टीमेटली एंड किससे करेगा, एंड ए से ही करेगा। और चूंकि दोनों स्टेट फाइनल स्टेट हैं, अगर मुझे चाहिए होता कि ऑड नंबर ऑफ एज से टर्मिनेट करे तो मेरी केवल ये वाली फाइनल स्टेट होती, ये वाली नॉन फाइनल स्टेट होती, तब ये डीएफए ठीक होता। लेकिन अब इसमें मुझे इवन ऑड में डिस्टिंग्विश तो करना नहीं है, तो दोनों में स्टेट मेरी फाइनल स्टेट है। दोनों स्टेट क्या काम कर रही है, दे आर होल्डिंग दी वर्ड्स विच आर एंडिंग विद एन ए। और अगर कहीं पे बी मिल रहा है तो वो उसको कहाँ भेज रही है, इस पहली वाली स्टेट पे भेज रही है। चाहे आपकी ये सेकंड स्टेट हो, इससे भी आप पहली स्टार्टिंग स्टेट पे जाएंगे, चाहे पहली वाली फाइनल स्टेट हो, इससे भी बी मिलने पर आप स्टार्ट स्टेट पे जाएंगे। तो एक तरह से आप देखें तो इस स्टेट की और इस स्टेट की, दोनों स्टेट की फंक्शनिंग सेम है। ऑन ए दे लीड्स टू ए फाइनल स्टेट, ऑन ए they leads to a final state, on B they leads to the start state or the another state which is non-final one, okay. So that's why the functioning, the working, the responsibility of these two states, अगर हम इवन और ऑड नंबर ऑफ एज से एंड होना ना कंसीडर करें, केवल ए से एंड होना कंसीडर करें, तो बोथ स्टेट्स आर having the same responsibility, so they are functioning same, they are equivalent states, या दूसरे शब्दों में कहिए they are duplicate states, they are redundant states, ओके। सो जहां भी डुप्लीकेट, रिडंडेंट या इक्विवेलेंट स्टेट्स अवेलेबल हैं, वहां आप उन स्टेट्स को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे और एक सिंगल स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं इन दोनों स्टेट्स को, इस फाइनल स्टेट को और इस फाइनल स्टेट को, दोनों स्टेट्स को मर्ज कर दूं एक सिंगल स्टेट में, जैसा कि मैंने यहां किया है, तो मेरा एफ ए क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। यानी जहां भी मेरे पास रिडंडेंट स्टेट्स हैं, जहां भी डुप्लीकेट स्टेट्स हैं या इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, मैं उनको मर्ज करके सिंगल स्टेट में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरा जो नया डिजाइन बनेगा दैट विल बी द मिनिमाइज्ड वन। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमाइजेशन। सो आवर मिनिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग द इक्विवेलेंट स्टेट्स इन आवर डीएफए। अगर मेरे डीएफए में कोई इक्विवेलेंट स्टेट नहीं है, अब अगर इस सेकंड वाले डीएफए को कंसीडर करें आप, तो देखिए पहली स्टेट इसकी फंक्शनिंग डिफरेंट है, दूसरी स्टेट इसकी फंक्शनिंग डिफरेंट है। दिस इज होल्डिंग ऑल वर्ड्स एंडिंग विद बी एंड दिस स्टेट इज होल्डिंग ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए। सो चूंकि दोनों स्टेट्स की फंक्शनिंग डिफरेंट है, दीज स्टेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट स्टेट। इसमें कोई भी, इस वाले एफए में कोई भी स्टेट मुझे इक्विवेलेंट स्टेट नहीं है, या डुप्लीकेट या रिडंडेंट स्टेट नहीं है। सो दैट्स व्हाई मिनिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? सो कहां मिनिमाइजेशन पॉसिबल है, जहां पर रिडंडेंट स्टेट्स या इक्विवेलेंट स्टेट्स या सेम फंक्शनिंग वाली डुप्लीकेट स्टेट्स अवेलेबल हैं, केवल वहां आप मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, वहां आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने डिजाइन को। लेकिन जहां कोई भी डुप्लीकेट स्टेट नहीं है, कोई भी इक्विवेलेंट स्टेट नहीं है, कोई भी रिडंडेंट स्टेट नहीं है, वहां आपका एफए ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, तो इट कैन नॉट बी फर्दर मिनिमाइज्ड। इज इट ओके? इट इज क्लियर टू एवरीवन?
क्लास? यस सर। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे को मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना चाहिए? इक्विवेलेंट स्टेट्स। अगर मैं इक्विवेलेंट स्टेट्स फाइंड आउट कर पाऊं तो फिर उन स्टेट्स को मर्ज करके मैं नया डिजाइन अपना प्रिपेयर कर सकता हूं। सो फॉर दिस आई एम गिविंग ए डेफिनेशन टू यू, दैट डेफिनेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्विवेलेंट. What do we mean by equivalent states? So this I am representing as a relation, so it is an equivalent relation. I say that two states, say Q1 and Q2 in our DFA. One state is Q1, another state is Q2. I say these two states are equivalent, and equivalent के लिए मैं क्या साइन लगाऊंगा? ये three parallel lines. So Q1 is equivalent to Q2. I will say that Q1 and Q2 are equivalent if they both delta Q1x and delta Q2x are either final states or both are non-final states. Final states for all x or all values of x belonging to sigma star. So this is a definition of the equivalence of two states. So I say that Q1 and Q2 two states are equivalent if delta Q1x and delta Q2x, यानी कि मैं कोई भी एक स्ट्रिंग x लेता हूं, x किससे आएगा? सिग्मा स्टार से. सिग्मा स्टार में कितने स्ट्रिंग होंगे? इन्फिनाइटली मेनी स्ट्रिंग्स. सो उन इन्फिनाइटली मेनी स्ट्रिंग्स में से किसी भी एक स्ट्रिंग को मैंने लिया x, उस x को मैंने Q1 से भी एग्जीक्यूट किया, ये मानते हुए कि मेरा Q1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है. सो Q1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, और दूसरी बार मैंने क्या माना? मेरा Q2 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है. सो उस x को ही एग्जीक्यूट किया, लेकिन Q2 से. अब जब Q1 से x को एग्जीक्यूट करूंगा तो किसी स्टेट पे पहुंचूंगा. सपोज मैं P स्टेट पे पहुंचता हूँ. सपोज Q2 से अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो सपोज मैं R स्टेट पे पहुंचता हूँ. सो P और R अगर दोनों फाइनल स्टेट्स हैं, या फिर P और R दोनों ही नॉन फाइनल, ऐसा नहीं हो सकता कि एक फाइनल हो और एक नॉन फाइनल हो. दोनों या तो फाइनल स्टेट हैं या फिर दोनों नॉन फाइनल स्टेट हैं. और ऐसा केवल एक x के लिए नहीं, जितने भी x पॉसिबल हैं सभी x के लिए है. तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा Q1 and Q2 these two states are equivalent states. तो मुझे मेथड पता चल गया कि कैसे मैं equivalent states फाइंड आउट कर सकता हूं. और अगर मुझे पता चल गया कि मेरे Q1 और Q2 equivalent, देखिए equivalent नहीं है तो तुरंत पता लग जाएगा कि एक स्टेट आएगी फाइनल और एक स्टेट आएगी नॉन फाइनल. चाहे कोई सी भी, ये फाइनल हो, ये नॉन फाइनल हो, या फिर R फाइनल हो और P नॉन फाइनल हो. इज इट? तो अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन मिलती है तो दीज स्टेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट, हम वहीं पे छोड़ सकते हैं. आगे किसी x को चेक करने की आवश्यकता नहीं. किसी भी एक x पे अगर हमें डिफरेंस मिलता है दोनों की डेस्टिनी में Q1 और Q2 से, तो हम क्या कहेंगे कि दीज स्टेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट स्टेट. इक्विवेलेंट कब होंगी? जब हर x की डेस्टिनी Q1 और Q2 दोनों से स्टार्ट करके सेम तरह की स्टेट पे आए. सेम स्टेट पे आए जरूरी नहीं है, अलग अलग स्टेट पे आ सकती है, बट सेम तरह की स्टेट होनी चाहिए कि P पे पहुंचा, ये R पे पहुंचा, अलग अलग स्टेट पे पहुंचे, मगर दोनों ही या तो फाइनल स्टेट्स हैं या दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट्स हैं. तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. और एक बार इक्विवेलेंट स्टेट्स हमारी फाइंड आउट हो गई तो हम अपने डिजाइन को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं. बट क्वेश्चन ये है, क्या इस तरह से हम इक्विवेलेंट स्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? क्लास, डू यू थिंक जो मैंने आपको बताया इससे ये तो समझ में आ रहा है इक्विवेलेंट स्टेट्स क्या होंगी, मगर क्या इस तरह से इक्विवेलेंट स्टेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्लास, नो सर. क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आंसर ठीक है, नहीं कर सर सकते. स्टेट्स ज्यादा हुई तो बट स्टेट्स ज्यादा हर हुई एक को तो कंपेयर करके हाँ, मान सबको लीजिए, कंपेयर करने में तो बहुत टाइम लगेगा. मान लीजिए 4 स्टेट हैं तो 4 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. पहली दूसरी, पहली तीसरी, पहली चौथी, फिर दूसरी तीसरी, दूसरी चौथी, फिर तीसरी चौथी. इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन कॉम्बिनेशंस को हम ट्राई कर लेंगे. ये इशू नहीं है. नंबर ऑफ स्टेट्स तो देखिए फाइनाइट होंगी, तो उनके कॉम्बिनेशन भी फाइनाइट होंगे. क्वेश्चन है ये एक्स.
किसी भी एक पेयर को ले लिया मैंने, अब उस पर मुझे x एग्जीक्यूट कराने हैं, और वो x कौन से, x बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार, ऑल x बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार। और सिग्मा स्टार में कितने एलिमेंट होंगे मेरे, कितने वर्ड्स बनेंगे, इनफाइनाइट। सिग्मा स्टार में हमेशा मेरे कितने वर्ड्स होते हैं, इनफाइनाइट। यानी कि मुझे ये टेस्ट करने के लिए कि ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स इनके ऊपर एग्जीक्यूट कराने पड़ेंगे और हर एक की डेस्टिनी चेक करनी पड़ेगी। अगर बीच में कहीं भी मेरे को मिल गया बाई चांस कि भाई दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है, तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि दोनों स्टेट इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन इक्विवेलेंट हैं, इसको डिक्लेयर करने के लिए मुझे इनफाइनाइट वर्ड्स चेक करने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर और नॉट? कि मुझे ये चेक करने के लिए कि दोनों इक्विवेलेंट हैं, अनइक्विवेलेंट हैं, ये तो फिर कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अगर मिल गया फॉर्चुनेटली तो अच्छी बात है, मैं डिक्लेयर करके वहीं स्टॉप कर दूंगा कि भाई मेरे ये दो स्टेट इक्विवेलेंट स्टेट्स नहीं है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट हैं, जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में ये स्टेट और ये स्टेट आपकी इक्विवेलेंट है, अगर आप इन दोनों स्टेट्स को चेक कर रहे हैं तो इनफाइनाइट वर्ड्स आपको चेक करने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। इज इट? तो ये इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ठीक है। इक्विवेलेंट फाइंड भी इस मेथड से हम जो है इन प्रिंसिपल कर सकते हैं, मगर इन प्रैक्टिस दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। सो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरी डेफिनेशन लेते हैं जिसको हम कहेंगे के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट। अब ये के इक्विवेलेंट क्या है? ये के इक्विवेलेंट कहता है कि दो स्टेट्स Q1 और Q2, अगेन वैसे जैसे यहां लिया है Q1 और Q2, दो स्टेट्स मेरी क्या होंगी, के इक्विवेलेंट। इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, 3 पैरेलल लाइंस एंड उसके नीचे क्या लिख दूंगा, के लिख दूंगा। सो के इक्विवेलेंट क्या है, आई विल से दैट Q1 एंड Q2 आर के इक्विवेलेंट if and the value of k is greater than equal to 0. So I can choose any value for k, either 0, 1, 2. So if I choose the value of k as 0, so I will say that Q1 and Q2 are 0 equivalent. If I choose the value of k 1, then I will say that Q1 and Q2 are 1 equivalent. Okay. So in general, I will say that Q1 and Q2 are k equivalent if both delta Q1 x and delta Q2 x are both either final states or both are non-final states. Final states for all x belonging to sigma star having length k और less। यानी कि अब हमें डेफिनेशन हमने क्या किया, मॉडिफाई की। अब हम x बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टार, सारे सिग्मा स्टार्स के सारे वर्ड्स के लिए नहीं कर रहे हैं, सिग्मा स्टार में से केवल उन वर्ड्स के लिए कर रहे हैं जिनकी लेंथ k या उससे लेस है। तो k या उससे लेस लेंथ वाले वर्ड्स कितने होंगे मेरे, वो तो फाइनाइट होंगे। तो फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स आई कैन चेक। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम चेकिंग फॉर 0 इक्विवेलेंस, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0। ओके, तो यानी कि मुझे क्या करना है, Q1 पे और Q2 पे 0 लेंथ वाले जितने भी वर्ड हैं उन वर्ड्स को अप्लाई करना है। अब 0 लेंथ वाले कितने वर्ड हो सकते हैं किसी भी सिग्मा स्टार में, केवल एक, दैट इज द एप्सिलॉन। यानी कि Q1 पे मैं एप्सिलॉन एग्जीक्यूट करूं। एप्सिलॉन मींस कोई सिंबल तो है ही नहीं उसके अंदर, यानी कि एप्सिलॉन एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है, मैं उसी स्टेट पर रहूंगा। सो Q1 का रिजल्ट क्या होगा, Q1 ही होगा। Q2 का रिजल्ट क्या होगा, एप्सिलॉन एग्जीक्यूट करने पे Q2 ही होगा। यानी मैं उन्हीं स्टेट्स पर रहूंगा, यानी कि मैं कोई भी इनपुट सिंबल यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर Q1 मेरी नॉन फाइनल स्टेट है तो नॉन फाइनल स्टेट होगी, Q2 मेरी फाइनल स्टेट है तो फाइनल स्टेट होगी। सो अगर Q1 Q2 दोनों नॉन फाइनल स्टेट हैं तो वो क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। या फिर Q1 और Q2 दोनों फाइनल स्टेट्स हैं तो आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। बट सपोज Q1 फाइनल स्टेट है और Q2 नॉन फाइनल स्टेट है, तो वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगी, क्योंकि डेस्टिनी उनकी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। On executing epsilon, you will remain on those states, means ultimately you will be ending up one state as a non-final state and another state as a
फाइनल स्टेट, इज इट? तो यानी कि कहने का पर्पस क्या है कि जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, नॉन फाइनल स्टेट्स आर जीरो इक्वलेंट, इज इट? सिमिलरली जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं वो आपस में क्या होंगी? आर ऑल्सो जीरो इक्वलेंट, इज इट? क्लियर है? यानी कि मेरे पास अगर मेरा क्यू है और उस क्यू में मेरे पास कुछ स्टेट्स हैं, सपोज आई से इट इज Q0, Q1, Q2, Q3 and Q4. Suppose these 5 states are there, Q0 to Q4, and out of these, suppose Q2 is a final state and Q4 is a final state. Then I can simply declare that Q2 and Q4 are zero equivalent. And similarly, Q1, Q0 and Q3, Q0, Q1 and Q3 are also zero equivalent. Zero equivalent. अब अगर मैं बात करूं Q0 और Q2 की, तो दे आर नॉट जीरो इक्विवेलेंट, दे आर इन डिफरेंट क्लासेस. सो Q2 और Q4 क्या है? सेम क्लास में है. Q0, Q1 और Q3 ये सेम क्लास में है. इज इट क्लियर? तो मुझे क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? जीरो इक्विवेलेंस में फाइंड आउट कर सकता हूं. इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए वन लेंथ के सारे वर्ड्स को एग्जीक्यूट करूं, सो अब मेरे सिग्मा स्टार में वन लेंथ के जितने भी वर्ड्स होंगे तो मैं सारी स्टेट्स पर Q0 पे भी वन लेंथ के, सपोज मेरे दो वर्ड हैं, सपोज मेरा सिग्मा इज, माई सिग्मा इज सपोज A कॉमा B, तो मेरे दो वर्ड बनेंगे जो वन लेंथ के होंगे, सिंगल A एंड सिंगल B. सो ऑन Q0 एंड Q1 सपोज आई एम चेकिंग, तो दोनों पे मैं क्या करूंगा? A अप्लाई करूंगा. Q0 पे A अप्लाई करने पर और Q1 पे A अप्लाई करने पर मैं जिन स्टेट्स पे पहुंचता हूं उनको चेक करूंगा कि अगर वो दोनों ही स्टेट या तो फाइनल स्टेट है या दोनों ही स्टेट मेरी नॉन फाइनल स्टेट है. ठीक है? अगर ऐसा है तो मैं फिर क्या करूंगा? बी के लिए चेक करूंगा. अगर बी पर भी मुझे सेम सिचुएशन मिलती है कि दोनों या तो फाइनल स्टेट हैं या दोनों नॉन फाइनल स्टेट हैं, तो आई विल डिक्लेयर दैट Q0 एंड Q1 आर वन इक्वलेंट ऑल्सो. और लेकिन अगर मान लीजिए मैं ए पे चेक कर रहा था, Q0 से मुझे फाइनल स्टेट मिली और Q1 से नॉन फाइनल स्टेट मिली, तो फिर आगे बी के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है. मुझे यहीं पे पता चल गया कि Q0 और Q1 मेरी जो है इक्वलेंट स्टेट्स नहीं होंगी, दे विल बी नॉट इक्वलेंट. ओके, दे विल बी नॉट वन इक्वलेंट, इज इट? तो इस तरह से जो है मैं इक्वलेंस जो है फाइंड आउट कर सकता हूं. सो आई होप दिस के इक्वलेंट रिलेशनशिप इज अंडरस्टूड बाय यू. क्लियर क्लास? यस सर. ओके, थोड़ा सा पोर्शन थ्योरेटिकल है लेकिन इसको समझना आवश्यक है, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड कि हम जो मिनिमाइजेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस आया कैसे है. इज इट? सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थ्योरेटिकल पार्ट. सो के इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट दो रिलेशनशिप हमें समझ में आ गई. आई मीन दो रिलेशंस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दोज प्रॉपर्टीज आई विल बी डिस्कसिंग. सो आई विल डिस्कस प्रॉपर्टी 1. प्रॉपर्टी 1 says the relations which we have defined, means अभी हमने दो रिलेशन डिफाइन किए, एक तो इक्विवेलेंट और दूसरा हमने डिफाइन किया के इक्विवेलेंट. So these two relations are equivalence relations. Equivalence relations. What do we mean by equivalence relations? Can anybody tell me? आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, फंक्शंस पढ़े होंगे, रिलेशंस पढ़े होंगे, तो जो है इक्विवेलेंस रिलेशन से हमारा क्या मतलब है? What do we mean by equivalence relations? क्लास? सर जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांसिटिव Yes. भी हो और सिमेट्रिक भी Equivalence हो. relation means कि the relation which is reflexive, symmetric and transitive.
यानी कि जो रिलेशन तीनों इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंट एंड के इक्विवेलेंट रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई स्टेट Q1 है तो Q1 अपने इक्विवेलेंट तो होगी ही, इज इट और नॉट? Q1 इज इक्विवेलेंट टू Q1। ऐसी सिमेट्रिक है, यानी कि वो क्या कहती है, अगर Q1 इज इक्विवेलेंट टू Q2 it implies that Q2 is also equivalent to Q1. So it is called symmetric. And transitive क्या है कि if suppose Q1 is equivalent to Q2 and Q2 is equivalent to suppose Q3, then we say that it implies that Q1 is also equivalent to Q3. So this is called transitivity. So our equivalent and K equivalent relations are reflexive, symmetric, as well as transitive. So these relations are equivalence relations. This is property number 1. Then property number 2 is P2 लिख देता हूँ short में. Property number 2 is that equivalence relation always induces a partition. So it induce partitions. पार्टीशन मीन्स कि ये आपका जो भी सेट है, ये रिलेशंस उस सेट को पार्टीशंस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था कि मेरा Q वाज सपोज स्टेट 1 2 3 4 5, सपोज ये 5 स्टेट है मेरे पास, जिनमें मैंने कहा था कि मेरी स्टेट नंबर 2 और सपोज स्टेट नंबर 5, दीज आर फाइनल स्टेट्स। ओके, अगर ये फाइनल स्टेट्स हैं तो ये क्या होंगे, जीरो इक्विवेलेंट होंगे। तो अब अगर मैं जीरो इक्विवेलेंट लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पाई जीरो। ओके, सो ये जो इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट रिलेशन है ये पार्टीशन क्रिएट करते हैं, और इक्विवेलेंट रिलेशन जो पार्टीशन क्रिएट करता है उसको हम पाई कहते हैं, और के इक्विवेलेंट रिलेशन जो पार्टीशन क्रिएट करेगा उसको हम पाई के कहेंगे। यहाँ हम के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर जीरो इक्विवेलेंट रिलेशन है तो पाई जीरो, 1 इक्विवेलेंट रिलेशन है तो पाई 1, 2 इक्विवेलेंट रिलेशन है तो पाई 2 एंड सो ऑन। ओके, सो हम जीरो इक्विवेलेंट रिलेशन से सपोज इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पाई जीरो हम फाइंड कर रहे हैं। तो पाई जीरो विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 2,5 एंड 1,3,4। यानी कि जो इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, यानी 2 और 5 एक दूसरे के इक्विवेलेंट थे तो वो एक साथ आ गए, 1, 3, 4 एक दूसरे के इक्विवेलेंट थे तो वो एक साथ आ गए, और इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। पार्टीशंस जब होते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। एक तरह से आप समझिए कि एक पूरा बड़ा एरिया है जिसको आपने पार्टीशन कर दिया, एक लाइन खींच दी, तो उस लाइन के इधर जो है वो सेपरेट है और लाइन के दूसरी साइड जो है वो सेपरेट है। तो आप देखिए मेरा ओरिजिनल सेट, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं, अगर इन दोनों एलिमेंट्स का मैं यूनियन करूं तो मुझे मेरा ओरिजिनल सेट मिल जाता है, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दीज आर कॉल्ड पार्टीशंस। सो इक्विवेलेंस रिलेशंस, चाहे वो इक्विवेलेंट हो या के इक्विवेलेंट हो, ऑलवेज इंड्यूसेस द पार्टीशन। अगर हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन से पार्टीशन हुआ तो हम उसको पाई कहेंगे, और के इक्विवेलेंट रिलेशन से अगर हमारा पार्टीशन हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, पाई के कहेंगे। देन कम ऑन दी प्रॉपर्टी नंबर 3. Property 3 says that Q1 and Q2 are K equivalent if Q1 and Q2 are K equivalent. K equivalent. And it is for all k greater than or equal to 0, then Q1 and Q2 are equivalent. आप देखिए मुझे अपने मिनिमाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, अल्टीमेटली ये पता करना है कि कौन सी स्टेट इक्विवेलेंट होंगी। के इक्विवेलेंट से मुझे कोई मतलब नहीं था, सो के इक्विवेलेंट लेकिन मैं आसानी से निकाल सकता था, तो के इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, ये प्रॉपर्टी 3 बता रही है। सो Q1 एंड Q2 अगर आपस में के इक्विवेलेंट है फॉर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, देन Q1 एंड Q2 आर इक्विवेलेंट। सो मुझे के इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट निकालने का मेथड तो पता चल गया, बट अगेन दिस मेथड इज नॉट यूजफुल टू मी बिकॉज
I have to do it for k greater than equal to 0, for all k greater than equal to 0. So again it is an infinite proportion, it is an infinite number. k equal to 0 के लिए करूंगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए. So k equivalent से equivalent में convert करने का method तो आ गया मेरे पास, लेकिन still it is not useful. So let us come to the next property, property number 4. This property number 4 says Q1 and Q2. सर हाँ, yes. सर प्रॉपर्टी 3 को एक बार बता दीजिए. प्रॉपर्टी 3 को, ओके. प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? इफ Q1 and Q2 आर K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे, अब K इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं. K इक्विवेलेंट फॉर ऑल K ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस K इक्वल टू, यानी Q1 Q2 0 इक्विवेलेंट भी है, Q1 Q2 1 इक्विवेलेंट भी है, Q1 Q2 2 इक्विवेलेंट भी है, एंड सो ऑन. सारी K की वैल्यूज के लिए Q1 and Q2 आर K इक्विवेलेंट. तो हम कहेंगे कि Q1 and Q2 आर इक्विवेलेंट आल्सो. यानी कि अगर K की सभी वैल्यूज के लिए Q1 and Q2 आर K इक्विवेलेंट, तो हम उनको क्या कहेंगे कि इट इज इक्विवेलेंट. तो एक तरह से हमने क्या किया, K इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का मेथड निकाल लिया. और हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट ही तो फाइंड करनी है स्टेट्स, क्योंकि अगर हमें इक्विवेलेंट स्टेट पता चल जाएंगी तो उनको मर्ज करके हम मिनिमाइज कर लेंगे. ठीक है, लेकिन ये मेथड भी यूजफुल नहीं है. क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि इसके लिए मुझे K इक्विवेलेंसी K की सभी वैल्यूज के लिए चेक करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टिल इन्फिनिटी. सो अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स आई हैव टू कंप्यूट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. इज इट क्लियर? प्रॉपर्टी 3 is clear now? यस सर. So now we come to the property 4. Property 4 says that Q1 and Q2 are K plus 1 equivalent. K plus 1 equivalent. If they are K equivalent. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. भाई दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि अगर मेरे Q1 और Q2 को K प्लस 1 यानी कि हायर लेवल की इक्वलेंस मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए K इक्वलेंट होना जरूरी है, यानी कि लोअर लेवल की इक्वलेंस जरूरी है. यानी कि अगर मुझे दो स्टेट्स को ये चेक करना है कि वो 1 इक्वलेंट है या नहीं, तो उसके लिए मुझे ये आवश्यक है कि वो स्टेट 0 इक्वलेंट हो, क्योंकि अगर वो 0 इक्वलेंट ही नहीं है तो 1 इक्वलेंट नहीं हो सकती. अगर 0 इक्वलेंट है तभी 1 इक्वलेंट हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे आप इसी एक जगह पे देखिए, मेरा ओरिजिनल सेट क्या था 1 2 3 4 5, जिसमें 2 और 5 मेरी क्या थी 0 इक्वलेंट थी, एंड 1 3 4 मेरी 1 इक्वलेंट थी. तो पाई 1, अगर पाई 0 से मैं पाई 1 कैलकुलेट करूंगा, यानी कि नेक्स्ट लेवल के पार्टीशंस कैलकुलेट करूंगा, सो इट इज ओनली पॉसिबल कि ये पार्टीशन फर्दर पार्टीशन हो जाए, सिमिलरली ये पार्टीशन फर्दर पार्टीशन हो जाए. मगर ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टीशन होकर के इसका कोई एलिमेंट इसके किसी एलिमेंट के साथ आकर के और यहाँ पे पार्टीशन बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. यानी ये पार्टीशन फर्दर पार्टीशन होंगे. बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे सपोज इफ इट इज अ सर्कल, अगर एक लाइन से मैंने इसको पार्टीशन किया तो एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है. अब अगर मैं इस पार्टीशन में, पहले वाले पार्टीशन में कहीं कोई लाइन खींचता हूं तो ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, मगर ये दोनों हिस्से कभी भी जो सेकंड पार्टीशन था यहाँ इधर की तरफ, इससे कभी भी मैच नहीं करेंगे. सिमिलरली अगर मान लीजिए इस दूसरे वाले पार्टीशन में मैं फर्दर कोई लाइन खींचता हूं, तो एक पार्टीशन ये बना और एक पार्टीशन ये बना, तो ये दोनों पार्टीशन इसके पार्टीशन है, मगर ये दोनों किसी भी जो पहला पार्टीशन था मेरा इधर की साइड, ये इसके जो दो पार्टीशन है इनके साथ मर्ज कभी भी नहीं करेंगे. यानी कि मैं क्या कहूंगा कि आप सीधे शब्दों में समझिए, पहले केस में ये मेरा ओरिजिनल सेट था, मैंने 0th लेवल के पार्टीशन किए, तो ये मेरे क्या हुए 0 लेवल के पार्टीशन हुए. पहला पार्टीशन 0 लेवल का और दूसरा पार्टीशन 0 लेवल का. अब जब मैं 1 लेवल के पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूं तो इन पार्टीशंस के अंदर पार्टीशन क्रिएट होंगे. तो सपोज मैंने एक लाइन यहां खींची, तो ये मेरा पहला पार्टीशन, ये मेरा दूसरा पार्टीशन, लेवल कौन सा, फर्स्ट लेवल का. ठीक है, इसी तरह से अगर यहां मैंने सपोज मैंने 2 लाइन खींच ली, तो एक पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन और तीसरा पार्टीशन पहले लेवल का. ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे पार्टीशंस क्रिएट होते हैं. यानी कि Q1 एंड Q2 आर K प्लस 1 इक्वलेंट इफ एंड ओनली इफ दे आर K इक्वलेंट ऑल्सो. यानी कि अगर वो 0, अगर उन्हें 1 इक्वलेंट होना है तो 0 इक्वलेंट होना पड़ेगा. यानी Q1 Q2 अगर
किसी फर्स्ट लेवल के पार्टीशन में अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 0 लेवल के पार्टीशन में भी साथ ही अवेलेबल होंगे, तभी वो फर्स्ट लेवल के पार्टीशन पर साथ आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। इज इट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू दिस you can find next level partition from the previous level partition। यानी kth partition से आप k plus 1th partition को find out कर सकते हैं। Is it clear? सर Then we yes सर ये फर्स्ट लेवल में जब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्टीशन करा तो सर वो दोनों पार्टीशन सेम होंगे या अलग अलग होंगे वो दोनों? नहीं, वो दोनों पार्टीशन तो अलग अलग होंगे। देखिए जैसे सपोज ये पाई 0 है, इसमें 2 5 1 3 4, ये आप मेरा पहला पार्टीशन हुआ फर्स्ट, ये मेरा हुआ फर्स्ट पार्टीशन। 1 3 4 ये मेरा हुआ सेकंड पार्टीशन। अब अगर मैं पाई 1 फाइंड आउट कर रहा हूँ, सपोज पाई 1 में मेरे पास क्या हुआ, ये 2 अलग हो गया और ये 5 अलग हो गया। इज इट? तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट पार्टीशन है, ये मेरा सेकंड पार्टीशन है, ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड पार्टीशन, जो दोनों किससे मिले हैं मुझे, जो प्रीवियस लेवल पे फर्स्ट पार्टीशन था उससे मिले हैं। उसके बाद सपोज ये 1 3 4 भी फर्दर पार्टीशन हो जाता है, इसमें 1 अलग आ जाता है और सपोज 3 4 अलग आ जाता है, सपोज, ठीक है। उन्हें वो किसी भी तरह से हो सकता है, 1 3 7 हो सकते हैं, 4 अलग हो सकता है, 1 4 7 हो सकते हैं, 3 अलग हो सकता है, या 1 3 4 तीनों अलग अलग हो सकते हैं। सो ये पार्टीशन, ये मेरा हुआ थर्ड पार्टीशन, ये मेरा हुआ फोर्थ पार्टीशन। तो थर्ड और फोर्थ पार्टीशन मुझे किससे मिले हैं, जो मेरा प्रीवियस लेवल पे सेकंड पार्टीशन था उससे मिले हैं। इज इट? तो इस तरह से ये पार्टीशन जो है, पार्टीशन के अंदर पार्टीशन होंगे, पार्टीशन आपस में मिक्स नहीं होंगे। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 इस 1 के साथ पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि 2 मुझे किससे मिला है, इस फर्स्ट पार्टीशन से मिला है, और 1 मुझे यहाँ जो मिला है, ये 1 ये किससे मिला है, इस सेकंड पार्टीशन से मिला है। इज इट? सो ये कभी भी आपस में मर्ज या मिक्स नहीं हो सकते। जो पार्टीशन अलग, मतलब जो एक लेवल पे अलग हो गया, वो फर्दर आगे के लेवल्स पे भी अलग ही रहेगा। इज इट? यानी कि जो 0 लेवल पे अलग हो गया, वो आगे किसी भी लेवल पे आपस में एक साथ नहीं आ सकता। इज इट? केवल कौन से साथ आ सकते हैं, जो पहले लेवल पे साथ हैं। जैसे देखिए पहले लेवल पे 1 3 4 साथ थे, अब इसमें आप देखिए 3 4 फर्स्ट लेवल पे भी साथ हैं। 0 लेवल पे साथ थे 1 3 4, इनमें से 3 4 फर्स्ट लेवल पे भी साथ हैं। इस तरह सपोज आप आगे पाई 2 फाइंड आउट करिए, सपोज ये सारे के सारे एज इट इज आ गया, पूरा एज इट इज आ गया सपोज, तो आप देखिए 3 4 सेकंड लेवल पे साथ हैं, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे भी वो साथ थे। सेकंड लेवल पे ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि 3 4 अलग हो जाएं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि 3 और 1 साथ आ जाएं, क्योंकि उससे प्रीवियस लेवल पे ये अलग अलग थे। इज इट? तो यही ये प्रॉपर्टी 4 कह रही है कि Q1 एंड Q2 आर k+1 इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे आर k इक्विवेलेंट आल्सो। अगर वो लोअर लेवल पे साथ थे तभी हायर लेवल पे साथ आ सकते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट कम टुगेदर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ये अभी जब हम अप्लाई करेंगे अपने मेथड को तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ प्रॉपर्टी 5, दिस प्रॉपर्टी 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई से दैट पाई k इज इक्वल टू पाई k+1, pi k+1 for some k। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं 0 इक्विवेलेंट से शुरू करूं और kth से k+1th, यानी 0 से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरह से हायर लेवल के पार्टीशन कैलकुलेट करता चला जाऊं, तो कहीं ना कहीं फॉर सम वैल्यू ऑफ k पाई k विल बी इक्वल टू पाई k+1, ये सिचुएशन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप देखिए, जैसे इसको आप देखिए, ओरिजिनल मेरे 5 एलिमेंट थे, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास सेट में। अगर पहले लेवल के पार्टीशन में कुछ इधर आए कुछ इधर आए, ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल के पार्टीशन में इन्हीं में पार्टीशन होंगे, तो या तो अगर मान लीजिए मैं मिनिमम चेंज भी कहूँ कि 2 5 ब्रेक हुआ, बाकी 1 3 4 साथ रह गए, ठीक है। अगली बार 1 3 4 में अब पाई 1 से पाई 2 को चेंज होने के लिए क्या चाहिए, देखिए 2 और 5 तो अलग हो चुकी है, तो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ 1 3 4 है सपोज, तो पाई 2 को पाई 1 से अलग होने के लिए 1 3 4 में से किसी एक का अलग होना जरूरी है। अगर नहीं अलग होंगे तो क्या होंगे, पाई 1 पाई 2 सेम हो जाएगा। सो सपोज 1 अलग हो गया, ठीक है। अब
पाई 2 से पाई 3 कैलकुलेट कर रहा हूँ। केवल देखिए 3 4 साथ रह गया था, ठीक है। तो 3 4 पाई 2 से पाई 3 को अलग होने के लिए 3 4 में से कोई एक सेपरेट होना चाहिए, तो 3 और 4 अलग होंगे। चलो सपोज 3 4 अलग हो गए। अब पाई 3 से पाई 4 जब कैलकुलेट करूंगा तो देखिए 2 5 1 3 4 सब अलग हो चुके, ये फर्दर पार्टीशन हो ही नहीं सकते। सो यानी कि पाई 3 एंड पाई 4 इज बाउंड टू बी इक्वल, और इससे पहले कहीं भी इक्वल हो सकता है। तो यानी कि फॉर सम वैल्यू ऑफ के, पाई के विल बिकम पाई के प्लस 1, और जब भी ऐसा होगा देन पाई के विल डिनोट फाइनल इक्विवेलेंस क्लासेस, फाइनल इक्विवेलेंस क्लासेस मीन्स पाई के विल बी इक्वलेंट टू पाई, जो कि मुझे अल्टीमेटली फाइंड करना था। मुझे सारी इक्वलेंट क्लासेस ही तो फाइंड करनी थी, तो मुझे पाई फाइंड करना था। सो पाई के विल बी इक्वल टू पाई, क्योंकि जब पाई के इज इक्वल टू पाई के प्लस 1 होगा, उससे बाद आप अगले लेवल का कैलकुलेट कर लीजिए। तो सपोज पाई के इज इक्वल टू पाई के प्लस 1 है, सो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू पाई के प्लस 2, यानी कि एक बार जब चेंज होना बंद होगा तो कहीं चेंज नहीं होगा। विल बी इक्वल टू पाई के प्लस 3 will be equal to and so on up till infinity। तो चूंकि मुझे up till infinity जाके भी यही पाई के ही मिलना है, so that's why this पाई के is equal to पाई। so यानी कि मुझे फाइनल सेट ऑफ इक्वलेंस क्लासेस मिल जाएंगे। तो यानी कि मेरा मेथड क्या हुआ, पाई फाइंड करने का या इक्वलेंट क्लासेस फाइंड करने का, मैं पाई 0 से शुरू करूं, पाई 0 से पाई 1 पे जाऊं, पाई 1 से पाई 2 पे जाऊं एंड सो ऑन। इसी को मैं फॉलो करता रहूं कब तक, जब तक कि मुझे किसी के की वैल्यू के लिए पाई के इज इक्वल टू पाई के प्लस 1 नहीं मिल जाता, अंटिल आई डू नॉट फाइंड पाई के इज इक्वल टू पाई के प्लस 1, इज इट। जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता, और जैसे ही मुझे ये मिलेगा उस केस में जो पाई के है दिस विल बी माई पाई। तो अब मुझे फाइनल सेट ऑफ इक्वलेंस क्लासेस मिल गया। अब हर इक्वलेंस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या करूंगा कि एक स्टेट बना दूंगा। अब इस पाई में इक्वलेंस क्लासेस होंगी, जैसे आप देखिए मान लीजिए पाई 1 और पाई 2 मेरे इक्वल हो गए। मेरा सपोज ये पाई 1 जो है ये मेरा पाई 2 सेम आ गया। सो यानी कि पाई 1 मुझे फाइनल सेट ऑफ इक्वलेंस क्लासेस देगा। तो अब देखिए इसमें कितनी इक्वलेंस क्लास है, 4 इक्वलेंस क्लासेस हैं। एक तो ये 2, एक ये 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक ये 3 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट बनाऊंगा, यानी कि एक स्टेट तो मेरी बनेगी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक स्टेट बनेगी मेरी 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक स्टेट मेरी बनेगी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, और एक स्टेट बनेगी मेरी 3 4 के कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये मेरी 4 स्टेट होंगी, यानी कि ओरिजिनल एफए में मेरी कितनी स्टेट थी, 5 स्टेट थी, 1 2 3 4 5, पांचों अलग अलग थी। अब मैं फाइनल जो मेरा मिनिमाइज डीएफए होगा उसमें मैं क्या करूंगा, 2 वाली तो रहने दूंगा वैसे ही, 5 वाली वैसे ही रहने दूंगा, 1 वाली वैसे ही रहने दूंगा, लेकिन 3 4 के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल स्टेट बना लूंगा। कहने का मतलब क्या है कि जो साथ आ रही है 3 4 साथ आ रही है, इसका मतलब 3 एंड 4 आर इक्वलेंट स्टेट्स। तो जो इक्वलेंट स्टेट्स हैं उन्हें क्या किया मैंने, मर्ज कर दिया और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टेट बना दी। उसके बाद फिर क्या करूंगा, इसके ट्रांजिशंस कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, जो मुझे एफए के ओरिजिनल एफए के ट्रांजिशन दिए हुए हैं उसकी हेल्प से मैं इन ट्रांजिशंस को कंप्लीट कर लूंगा। सो दिस विल बी द होल मेथड ऑफ कन्वर्टिंग मिनिमाइजिंग माय डीएफए। सो ओरिजिनल डीएफए मेरे को दिया हुआ होगा, तो ओरिजिनल डीएफए से मुझे क्या करना है, सबसे पहले पाई 0 फाइंड करना। पाई 0 मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ, जितनी भी फाइनल स्टेट्स होंगी वो एक पार्टीशन में होंगी, जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी वो दूसरे पार्टीशन में होंगी। और उसके बाद पाई 0 की हेल्प से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, पाई 1 कैलकुलेट करूंगा, पाई 1 की हेल्प से पाई 2 कैलकुलेट करूंगा। अब इसमें बस एक चीज रह गई कि मैंने ये तो कहा कि पाई 1 कैलकुलेट करने के लिए पाई 0 का पता होना जरूरी है, क्योंकि पाई 1 के एलिमेंट पाई 0 की हेल्प से ही कैलकुलेट होंगे, लेकिन कैसे, वो मेथड मैंने अभी तक यहां नहीं दिया। सो देयर इज लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट रिजल्ट rather I should say, which will tell you how to compute k plus 1 equivalent classes from k equivalent classes. So result is 2 states Q1 and Q2 are k plus 1 equivalent, k plus 1 equivalent if and only if number 1 they
आर के इक्वलेंट। ये रिजल्ट तो हमारा सीधा आया प्रॉपर्टी नंबर 4 से कि दोनों Q1 और Q2 K+1 इक्वलेंट तभी होंगे जब वो ऑलरेडी K इक्वलेंट हों। ओके, सो दे आर K इक्वलेंट ऑल्सो इफ दे आर K इक्वलेंट ऑल्सो। और सेकंड क्या है, डेल्टा Q1A एंड डेल्टा Q2A आर ऑल्सो K equivalent for every A belonging to sigma, is it? तो यानी कि ये तो हमें पता है ही कि अगर K इक्वलेंट होंगे तभी K+1 इक्वलेंट हो सकते हैं, लेकिन होंगे कि नहीं होंगे ये हमें पता करना है। तो उसके लिए हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड स्टेप काम आएगा। हम क्या करेंगे, Q1 पे A अप्लाई करेंगे और साथ में Q2 पे भी A अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब Q1 पे A अप्लाई करा, जैसे इससे आई आपकी स्टेट P, Q2 पे अप्लाई करा, इससे स्टेट आई आपकी सपोज S, तो P और S दोनों को चेक करूंगा कि दे आर ऑल्सो K इक्वलेंट और नॉट, यानी P और S दोनों K इक्वलेंट होने चाहिए। K इक्वलेंट होने चाहिए मतलब Kth लेवल के पार्टीशंस में P और S सेम पार्टीशन के अंदर आने चाहिए। अगर सेम पार्टीशन के अंदर आ रहे हैं तो दे आर ऑल्सो K इक्वलेंट, एंड दिस वी हैव टू चेक फॉर एवरी A। सो मान लीजिए मेरे अल्फाबेट में 5 सिंबल हैं, तो 5 बार मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। मेरे अल्फाबेट में सपोज 2 सिंबल हैं A और B, तो एक बार A के लिए चेक करूंगा, एक बार B के लिए, 2 बार चेक करूंगा। और अगर A और B दोनों के लिए जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स K इक्वलेंट होते हैं, तो मेरा क्या होगा कि Q1 और Q2 K इक्वलेंट तो थे ही, साथ में क्या होंगे, K+1 इक्वलेंट भी होंगे। सो दिस इज द मेथड बाय विच आई कैन फाइंड pi1 with the help of pi0, then pi2 with the help of pi1, then pi3 with the help of pi2 and so on। और उसमें जब तक कि मैं करता चला जाऊंगा, देखिए पिछली शीट में मैंने जैसे कहा pi0 से शुरू करूंगा, pi0 से pi1 कंप्यूट करूंगा, pi1 से pi2 कंप्यूट करूंगा, एंड सो ऑन, जब तक कि मुझे पाई के इज इक्वल टू पाई के प्लस 1 ना मिल जाए। जैसे ये सिचुएशन मेरे को मिलेगी, देन पाई के विल डिनोट द फाइनल सेट ऑफ इक्वलेंस क्लासेस, और उन इक्वलेंस क्लासेस के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या बना लूंगा, स्टेट बना लूंगा। आई विल फॉर्म दी स्टेट्स, ओके, आई विल फॉर्म दी स्टेट्स, और उसके बाद उसके ट्रांजिशन कंप्लीट कर लूंगा। सो दिस विल बी द होल प्रोसेस। सो कॉन्सेप्चुअली आई होप सम आइडिया ऑफ दिस प्रोसेस यू मे बी हैविंग, ओके। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा कि क्या करना है एक्चुअली। सो वी विल टेक वन एग्जाम्पल एंड वी विल अप्लाई दिस मेथड, दिस प्रोसेस टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आई विल ट्राई टू रिमूव दैट डाउट। ओके, अगर नहीं है तो फिर मैं एक एग्जाम्पल लेना लेता हूं, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या है? यस सर, एक्सक्यूज मी। यस सर, आपने सर यहाँ पे रिजल्ट के सेकंड वाले पॉइंट में बताया था कि हम मतलब तब तक चेक करेंगे जब तक वो सेम पार्टीशन लेवल पर ना पहुंच जाएं। तो सर वो सेम पार्टीशन लेवल मतलब क्या हुआ सर, वो एक बार समझा दीजिए। किस में बताया था, एक बार दोबारा बताइए मुझे। सर आपने अभी ये रिजल्ट के सेकंड वाले पॉइंट में बताया ना सर, हाँ कि मतलब अगर ए हो तो सर सेम पार्टीशन लेवल पर होगा तो फिर वो के इक्विवेलेंट होगा। सर वो सेम पार्टीशन लेवल का मतलब क्या हुआ सर, वो सेम पार्टीशन लेवल का मतलब बता दीजिए। मैं अभी ये बताता हूँ आपको। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल में मैं प्रोसेस अप्लाई करता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो फिर देखते हैं, ओके। सो लेट मी गो टू दी अनदर शीट। ओके, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, स्टेट oblique sigma on A and on B. There is state 1, which is the start state. On A it is going to 1, on B it is going to 2. Okay. Then the second state, on A it is going to 1, on B it is going to 3. Then third state, which is the final state also. On A it is going 4, on B it is going 3. Then the next state is 4, that is also the final state. On A it is going to 4, on B it is going to 3. Suppose this is your DFA. अगर मैं इसको
जल्दी से ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में बनाऊं तो इट इज 1, इट इज द स्टार्ट स्टेट. ऑन ए it is coming to itself. On B it is going to the state 2. From 2 on A it is coming back to 1. On B it is going to 3, which is a final state also. Okay, and from 3 on A it is going to 4. It is also a final state, and on B it is staying here. From 4 on A it is staying here. On B it is coming back to the state 3. Is it? So this is the DFA जो कि मुझे यहाँ ट्रांजिशन टेबल में दिया हुआ है. And this DFA I wish to minimize. Before minimization, I first wish that you analyze this DFA to tell me what language this DFA will represent. Quickly. What language this DFA will represent? आप देखिए जब तक ए मिलते रहेंगे यही रहेगा. जैसे ही पहला बी मिलेगा. यस. The string ending with BB or BA. No. All strings containing double B in them. Is it? यानी कि एक बार डबल बी आ जाए तो उसके बाद कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता. आप देखिए एक बार आपको जब तक ए मिलता रहा आप यहीं पे स्टे किए. जैसे ही पहला बी मिला आप आगे मूव कर गए. अगर दूसरा बी मिला तो आप फाइनल स्टेट पे पहुंचे. ठीक है. लेकिन अगर दूसरा बी नहीं मिला उससे पहले ही ए मिल गया तो आप वापस आएंगे. यानी कि वापस सक्सेस के लिए चाहिए आपको डबल बी. यानी जब तक दो बी एक साथ कंजिक्यूशन में नहीं मिलते आपको तब तक आप इस स्टेट 3 पे नहीं पहुंचेंगे. और एक बार आप इस स्टेट 3 पे पहुंच गए तो उसके बाद ए आए तो आप स्टेट 4 पे भले ही पहुंचेंगे बट इट इज ऑल्सो फाइनल स्टेट. सो यानी कि ए आ जाए उसके बाद भी आपका सक्सेस होगा. ठीक है. ए मिलता रहे तब भी सक्सेस होगा. बी मिले तो आप 3 पे वापस आएंगे बट स्टिल इट इज अ फाइनल स्टेट. ओके. और जब तक बी मिलता रहेगा यहीं पे स्टे करेंगे. यानी कि एक बार अगर आप इस पोर्शन के इधर की तरफ आए जहां मैंने ये लाइन खींची है इस पोर्शन के राइट साइड में आए तो आप कभी भी इस एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे. और इस एरिया में जितनी भी स्टेट है सब फाइनल स्टेट है. तो आप चाहे किसी भी स्टेट पे एंड करें अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही होगा. यानी कि एक बार डबल भी आ गया तो आप इस एरिया में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद कभी भी इस एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे. अगर मैं इसका सीधे डायरेक्ट डीएफए बनाता तो एक ऐसा भी बना सकता था 1 ऑन ए बी 2 बी. अब की बार मैं इसको कहता हूं 3 डैश. ओके. और ये 3 डैश मेरी क्या होती फाइनल स्टेट होती. एंड ऑन ए बी आई विल स्टे हियर. नाउ फ्रॉम 2 ऑन ए आई विल मूव. अगर मैं ये बनाऊं इस ऐसे ही मैं यहाँ पे इस पोर्शन को जहां लाइन खींची है लाइन से लेफ्ट वाला पोर्शन देखिए दोनों में सेम है. इज इट और नॉट? राइट वाले पोर्शन में क्या है इधर 2 स्टेट्स हैं 3 4 लेकिन दोनों ही फाइनल स्टेट है. यानी एक बार आप इस एरिया में एंटर किए तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलना है. ऐसे यहाँ भी क्या है एक बार आप इस यहाँ एंटर किए तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलना है. तो दोनों एफएज सेम लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इज इट और नॉट क्लास? ये क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों एफएज क्या है मेरे इक्वलेंट हैं. और पहले वाले एफए में क्या है देखिए 4 स्टेट है और दूसरे वाले एफए में क्या है 3 स्टेट है. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरा मिनिमाइजेशन के बाद का है. मिनिमाइजेशन. इज इट? यानी कि इस एफए को अगर मैं मिनिमाइज करूं तो मुझे ये एफए मिलना चाहिए. इज इट और नॉट? क्लियर है कि नहीं? ये तो मैंने जस्ट एनालिसिस से बताया आपको. क्लास समबडी रिस्पॉन्ड. ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज इट? यस सर. तो यानी कि मैं मिनिमाइज करूं. अब मैं यही कर रहा हूं. मैंने क्या किया इस एफए ऊपर वाले एफए के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन टेबल लिया है. इज इट? ये ट्रांजिशन टेबल लिया. अब मैं क्या कर रहा हूं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं. मिनिमाइज करने के लिए क्या करूंगा सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा पाई 0. ठीक है. सो पाई 0 फाइंड आउट करूंगा. पाई 0 इज इक्वल टू व्हाट? यानी कि 0 इक्वलेंट क्लासेस. अब मेरी 1 2 3 4 ये 4 स्टेट है. इन 4 स्टेट में कौन सी स्टेट 0 इक्वलेंट होंगी बता सकते हैं मुझे देख करके? वन और 2. Yes, and then 3 or 4.
3 and 4. 1 2 आपस में 0 इक्विवेलेंट होंगी और 3 4 आपस में 0 इक्विवेलेंट होंगी, यानी कि मेरी जो 4 स्टेट थी ये 2 पार्टीशन में कन्वर्ट हो गई, एक नॉन फाइनल स्टेट्स का पार्टीशन, दूसरा फाइनल स्टेट्स का पार्टीशन। ये मेरे क्या हुए, 0 लेवल के पार्टीशन हुए। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं क्या देता हूँ, इट इज माई Q1 0, इट इज माई Q2 0। अब यहां देखिए मैंने 2 चीजें ली है Q के साथ, ठीक है, पहला है 1, दूसरा है 2, यानी नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है ये है मेरा पार्टीशन नंबर, ये मेरा पहला पार्टीशन है, ये मेरा दूसरा पार्टीशन है, और ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है दोनों में सेम है, ये लेवल ऑफ पार्टीशन है कि 0th लेवल के पार्टीशंस हैं, यानी कि 1 2 इज 0th लेवल पार्टीशन, 3 4 इज ऑल्सो इज 0th लेवल पार्टीशन, क्योंकि ये पाई 0 के एलिमेंट्स हैं, इज इट। सो ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट क्या है, ऊपर वाला ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये क्या है, इट इज द लेवल ऑफ पार्टीशन, और नीचे वाला क्या है, पार्टीशन नंबर। इज इट क्लियर। तो ये मेरा हो गया Q1 0 और ये मेरा हो गया Q2 0। अब मैं इस पे अप्लाई करता हूं, मुझे पाई 0 से क्या निकालना है, मुझे निकालना है पाई 1। अब पाई 1 में जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, देखिए 1 3 के साथ तो मिक्स नहीं हो सकता, 1 4 के साथ मिक्स नहीं हो सकता, यानी जो पार्टीशन अलग हो चुके वो तो अलग हो चुके, यानी जो भी पार्टीशन होगा फर्दर इन पार्टीशंस के अंदर होगा। तो यानी कि अगर फर्स्ट लेवल पे 1 और 2 साथ, अगर साथ आ सकते हैं तो केवल 1 और 2 साथ आ सकते हैं, या केवल 3 और 4 साथ आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता 1 3 साथ आ जाए या 2 4 साथ आ जाए, इज इट। तो अब मैं चेक करता हूं 1 2 ये फर्स्ट लेवल पे साथ रहेंगे या अलग होंगे, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूं स्टेट नंबर 1 एंड स्टेट नंबर 2। सो ये मेरी एक तरह समझ लीजिए स्टेट, और इधर की तरफ मैं लिखता हूं इनपुट। अब मैंने क्या किया, स्टेट नंबर 1 पे अब मेरे इनपुट सिंबल कौन से 2 हैं, एक तो A और एक B, इज इट। तो स्टेट 1 और 2 दोनों पे मैं कौन सा सिंबल अप्लाई करूंगा, पहले A सिंबल अप्लाई करूंगा, ठीक है। 1 पे अगर A अप्लाई किया तो क्या आएगा 1, ठीक है। 1 पे अगर A अप्लाई किया तो क्या आएगा 1। इसी तरह से 2 पर अगर A अप्लाई किया तो क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो 1। और दोनों क्या है 1 1, सेम ही स्टेट है तो अलग अलग पार्टीशन में होने का तो मतलब ही नहीं। सो इट विल बी इन द सेम पार्टीशन, यानी कि Q1 0 में है ये, क्योंकि सेम पार्टीशन में है तो यानी कि A से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इस पे B अप्लाई करता हूं दोनों पे। अगर 1 पे B अप्लाई किया तो क्या आएगा 2, अगर 2 पे B अप्लाई किया तो क्या आएगा 3। 2 और 3 ये दोनों स्टेट अलग अलग हैं तो अलग अलग पार्टीशन में हो सकती हैं। चेक करते हैं 2 कौन से पार्टीशन में है, Q1 0 में, देखिए 2 यहां पे मौजूद है, कौन से पार्टीशन में है, Q1 0 में। 3 कौन से पार्टीशन में है, यहां मौजूद है Q2 0 में, यानी दोनों अलग अलग पार्टीशन में है। जब अलग अलग पार्टीशन में है इसका मतलब क्या है, सारे इनपुट सिंबल्स पे 1 और 2 की जो डेस्टिनी है वो सेम नहीं है, इज इट। तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 नेक्स्ट लेवल पे अलग अलग होंगे, साथ नहीं होंगे। सो 1 मेरा अलग हो गया और 2 मेरा अलग हो गया, इज इट। अब आते हैं 3 4 पे, इसी तरह से 3 4 को चेक करते हैं, 3 एंड 4, 3 एंड 4 दोनों पे A अप्लाई करते हैं, ठीक है। दोनों पे A अप्लाई करा, क्या आया 4 4 4। तो ये तो सेम पार्टीशन में होगा, जब स्टेट सेम आ जाती है तो सेम पार्टीशन है, वहां देखने की जरूरत नहीं कौन सा पार्टीशन है, सेम पार्टीशन, इज इट। तो इसी तरह से अब मैं B अप्लाई करूंगा, लेकिन खाली एक से नहीं होगा, मुझे दूसरा सारे सिंबल अप्लाई करके देखने हैं, ठीक है। B अगर अलग आ जाए, मान लीजिए मैं B पहले अप्लाई करता तो फिर मुझे A अप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं थी पहले वाले केस में, क्योंकि पहले ही मुझे पता चल जाता अलग अलग होगा, इज इट। सो 3 on B and 4 on B both are 3, again the same state has come, so it will be in same partition। so यानी कि A और B दोनों पे इसकी डेस्टिनी सेम है, तो 3 4 नेक्स्ट लेवल पे क्या आएंगे, साथ आएंगे। तो अब मेरे पाई 1 के पार्टीशन क्या बन गए, ये बन गए। अब मैं वापस इन्हें नेम करता हूं, इट इज माई Q1 1, it is my Q2 1, it is my Q3 1। अब ये क्या है, it is my first partition, it is my second partition, it is my third partition। ऊपर इस नंबर से क्या पता चला, ये मेरे फर्स्ट लेवल के पार्टीशन, क्योंकि पाई 1 के एलिमेंट है, इज इट। नाउ आई होप यू मे बी क्लियर अबाउट कि व्हाट डू वी मीन बाई लेवल ऑफ पार्टीशन। सो ये 0th लेवल के पार्टीशन है मेरे, ये मेरे फर्स्ट लेवल के पार्टीशन। इसी तरह से मैं फिर जल्दी से फटाफट पाई 2 फाइंड आउट करता हूँ, पाई 2 फाइंड आउट करता हूं, Q1। अब देखिए ये 1 और 2 ये तो एज इट इज आएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिंगल स्टेट है, सिंगल स्टेट फर्दर पार्टीशन नहीं हो सकती है, अगर एक से ज्यादा स्टेट है तभी उन पार्टीशंस को आप फर्दर पार्टीशन कर सकते हैं। तो ये 1 तो एज इट इज आएगा, ये 2 एज इट इज आएगा, एंड देन 3 4 को चेक करना है।
अब 3 4 को चेक करना है तो वापस मैं चेक करता हूँ 3 4, 3 और 4 पे अगर ए अप्लाई करता हूँ तो मुझे पता है 4 आएगा। अब मैं 4 देखूंगा कि मेरे कौन से पार्टीशन में, अब मैं देखिए पिछली बार मैंने 0 लेवल के पार्टीशंस में देखा था, अब उसमें नहीं देखूंगा, अब किस में देखूंगा, जो लेटेस्ट पार्टीशन मेरे पास अवेलेबल है। इस लेटेस्ट पार्टीशन में 4 चूंकि सेम स्टेट है तो सेम ही पार्टीशन में आएगा, Q3 1 में है ये, कोई बात नहीं। इस तरह बी क्या है मेरा 3, ये भी सेम लेवल पे, इसी लेवल पे देखूंगा, क्योंकि स्टेट अगर सेम आएगी तो फिर पार्टीशन तो सेम होगा ही होगा। तो यानी कि 3 4 इस लेवल पे भी 7 आएगा, 3 4 इस लेवल पे भी 7 आएगा, तो 3 4 इस लेवल पे भी मैंने 7 लिया, इज इट। तो पाई 2, अब आप देखिए मुझे क्या मिल गया, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 मिल गया। पाई 1 और पाई 2 में कोई पाई 0 से पाई 1 चेंज हुआ, मगर पाई 1 से पाई 2 चेंज नहीं हुआ, तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 मिल गया। तो यानी कि पाई 1 मेरा क्या है, फाइनल सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, यानी कि मेरी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, 1 2 और 3 4, इज इट। तो मेरी 3 स्टेट बनेगी, एक 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक 2 के कॉरस्पॉन्डिंग और एक 3 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली स्टेट मेरी स्टार्ट स्टेट होगी, क्योंकि ये देखिए मेरी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। अब 1 on A is going to 1, so itself 1 on B is going to 2, so 2. Now 2 के partition on A it is 1, on A it is 1, on B it is 3, on B it is 3, तो 3, अब 3 तो है नहीं यहाँ स्टेट, यहाँ क्या है 3 4, उसके corresponding जो भी इक्विवेलेंस क्लास है वहां जाएंगे। So on B 3 4, अब 3 4 क्या है, अब 3 का आप देखिए A पर 4, सो A पर 4 4 इसी क्लास में आता है, तो A पे सेल्फ यूज। उसके बाद 3 का B पर, अब 3 4 के जब हम निकाल देंगे तो चाहे मैं 3 के देख लूं ट्रांजिशन या 4 के देख लूं, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, इज इट। सो 3 का ऑन B मैंने देखा तो इट इज 3, वो इसी क्लास में आता है, तो कॉमा B। अब देखिए ये मेरा मिनिमाइज बन गया एंड इट इज द फाइनल स्टेट। क्यों, क्योंकि 3 4 मेरी फाइनल स्टेट है, तो 3 4 जिस भी इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे वो इक्विवेलेंस क्लास मेरी क्या होंगी, मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी, इज इट। तो इस तरह से आप देखिए मेरा ये नया DFA बन गया, और ये मिनिमाइजेशन के बाद है। तो इफ यू लुक एट दीज टू आर सिमिलर, इज इट। सो दिस इज द मेथड। आई होप थ्रू दिस एग्जाम्पल you will be more clear about the process. Okay, अभी हमने प्रोसेस डिस्कस किया, पहली बार किया है तो हो सकता है उतना क्लियर ना हो। Now on the next lecture we'll take one more example which is a bigger example, जिसमें सारे केसेस भी हमारे कवर होंगे, तो उससे आपको और एक बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। If you have any doubt you can ask, otherwise I am closing. It is already time is over. Class, is there any doubt or I should close? नो डाउट सर। ओके, सो यहीं पे करिए। अब जो मैंने आपको बताया इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपने पास बुक से भी, ये सारा पोर्शन मैंने KLP मिश्रा से लिया है, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी बुक को फॉलो करें, बट मैंने KLP मिश्रा से लिया है इस पोर्शन को, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज ऑन नेक्स्ट लेक्चर विल टेक मोर एग्जाम्पल्स। थैंक यू ऑल, नाउ यू कैन लीव द क्लास।